Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to go through chapter number 10 wave optics topic. We will see what is the main concept of wave and Huygens principle. Before we start this chapter, we have to understand that we have already gone through this little concept of wave in previous chapter electromagnetic wave. When we were going through the chapter electromagnetic wave, we understood wave in the concept of electromagnetism only. Under the concept of electromagnetism, we understood what is wave. But in this chapter, we are going to understand with the whole form of wave. We will understand what is wave in this separate chapter, because in previous chapter we understood under the concept of electromagnetism only. So before we start wave optics, we have to understand how the concept of wave came into proposal. First of all, the scientist Isaac Newton proposed that कि लाइट इमिट होती है, लाइट ट्रेवल करता है सोर्स से रिसीवर तक, जहां पर उसको देखा जा सके, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कर्पस्कुलर. ये कर्पस्कुलर को उसने डिफाइन किया, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सोर्स से निकलते हैं. ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास नेग्लिजिबल होता है, मासलेस होते हैं, और ये रिजिड पार्टिकल होते हैं जो ट्रेवल करते हैं सोर्स से with the speed of light. So light was a form of energy. He gave that concept, but he said that ये particle के form के होते हैं. And we have already seen that light is having a dual nature. It acts at some application it acts as particle, at some applications it acts as wave. But later on this concept was having some limitation. This was realized later on. कैसे? जब देखा गया कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसकी दूसरे मीडियम में, एक मीडियम में उसकी स्पीड कुछ अलग रहती है, दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड चेंज हो जाती है. इट मींस दैट इट्स स्पीड इज चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग when it is in the different kinds of medium. तो फिर ये प्रपोज किया गया, ये सोचा गया कि यूनिवर्स में जैसे सन और अर्थ के बीच में हम अभी जानते हैं कि वैक्यूम है, बट एट दैट टाइम इट वाज प्रपोज्ड इट वाज द टाइम ऑफ अराउंड mid 19th century, 1850 1860 something like that. So at that time it was proposed that there is some medium in the universe, and that they called it as ether. उन्होंने कहा कि एक ईथर नाम का एक मटेरियल, एक मैटर है, वो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और वो मीडियम की तरह काम करता है, जिससे सारी लाइट्स या सारे सोर्स ऑफ एनर्जी अपनी एनर्जी को प्रोपोगेट करते हैं. बट लेटर ऑन इट वाज आल्सो proposed that this is not true. But when this all concepts came into play and this all concepts were not proving it right, then a Dutch scientist came and he said that Huygens principle. Huygens नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया, ये डच साइंटिस्ट था, उसने बताया कि waves are there and they are being propagated in the vacuum also. They are being propagated from the source, they are being emitted out of the source. सोर्स उसको क्या करेगा, अपने एनर्जी को इमिट करेगा. मान लो ये सोर्स है और ये क्या करेगा, इसको हर डायरेक्शन में इमिट कर देगा in the form of wave. So what could be wave and how it can be propagated? Let us understand about it. Let us see. Before that, let us see what we are going to understand in this chapter. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है. देन वी विल सी रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट. हम लोग वेव फ्रंट क्या होता है समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि इसके बेसिस में हम लोग
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे होता है। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एज वी ऑलरेडी नो, रिफ्लेक्शन के भी लॉ होते हैं, रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं, तो वो प्रूफ करना है हमको हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार। इंटरफेरेंस क्या होता है समझेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिज विड्थ, कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या होता है ये देखेंगे, ड्यू टू अ सिंगल स्लिट और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये टर्म हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। सो व्हाट इज वेव फ्रंट, इसको समझने के लिए जस्ट इमेजिन लाइक दैट कि आपने एक शांत पानी में, आपने देखा होगा बकेट में पानी भरा हुआ है, उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ऊपर से आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, वो ऑब्जेक्ट जैसे ही पानी में गिरेगा, शांत है ना पानी, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल उसमें कोई लहर नहीं, कोई भी बिल्कुल वेव नहीं है, तो जैसे ही आपने छोड़ा, वो जहां पर पानी गिरा वहां से एक डिस्टरबेंस पैदा होगा, एक डिस्टरबेंस पैदा होगा, डिस्टरबेंस पैदा हुआ, वो डिस्टरबेंस रैंडम नहीं होगा, वो डिस्टरबेंस आगे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। इसको गौर करना कैसा होता है, ये कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने ये प्लेन सरफेस है ना, ये पानी का सरफेस, आपने यहां पर एक ड्रॉप किया, ये यहां पे ड्रॉप गया और ये एक कुछ इस प्रकार से पैटर्न्स क्रिएट करेगा, और ये पैटर्न्स जो है ये आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोपोगेट होते जाएंगे। ये जो डिस्टरबेंस है हुआ चालू यहां से था और आगे बढ़ता जा रहा है, हर डायरेक्शन में एक प्लेन में आगे बढ़ता जा रहा है, ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ते जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स ओनली इट इज बीइंग प्रोपोगेटेड, इट इज बीइंग प्रोपोगेटेड forward, but it is propagating in all direction. So that is what, how we can call it wave front. A wave front is defined as, तो wave front क्या होता है, wave front is defined as the continuous locus of all particles of the medium which are vibrating in the same phase at that point, at any point. So just imagine that we are having a source of disturbance, वहां से डिस्टरबेंस फैलना चालू हुआ, अब किसी भी टाइम पर आप देखेंगे कि सारे पार्टिकल्स जो हैं, सारे पार्टिकल्स है, दे विल बी इन द सेम फेस। ये सेम फेस क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में याद आ रहा है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, जिसमें से y क्या था, it was displacement of the particle, और x क्या था, it was the displacement of the wave, a कांस्टेंट था, और ओमेगा t था टाइम, यहां पे ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स जो था, साइन के आगे जो एंगल दिख रहा था वो हमें बताता था फेस। फेस का मतलब क्या, किस एंगल पे सारे, कितने एंगल पे सारे वेव्स अभी हैं। तो समझ लो, देखो ये एक टी टाइम पे, यहां पर हम लोग टी टाइम पे पहुंचे, तो यहां पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यहां पे इस जगह पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे सेम फेस में होंगे। क्यों, देखो, क्योंकि ये सोर्स से सब x डिस्टेंस की दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये सारे पार्टिकल्स जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहे होंगे उसका फेस तो बिल्कुल सेम होगा। मान लो वो 45 डिग्री में होंगे, मान लो वॉट एवर यू कैन से, सो वो सारे 45 डिग्री पर एक ओरिजिन से एक एक्सिस से 45 डिग्री पर होंगे। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि वेव फ्रंट क्या हो गया, पूरा ये पूरा जो एक कंटिन्यूअस लोकस हुआ, देखो ये बना कैसे, छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे पार्टिकल्स से, ये सारे पार्टिकल्स को, पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो एक पूरा वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है, वेव फ्रंट। तो एक वेव फ्रंट ये हो गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया। हम लोग देखेंगे वेव फ्रंट ऐसे ही नहीं होते, आपको जो सर्कुलर दिख रहा है वो सर्कुलर वेव फ्रंट हमको यहाँ पे दिख रहा है। वेव फ्रंट कई प्रकार के होते हैं, हम लोग समझेंगे क्या कि कितने प्रकार के होते हैं, बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस लोकस। देखो बहुत सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो बन जाता है लोकस, लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ एक ही फेस में है, उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, वेव फ्रंट
को समझने के लिए, वेव फ्रंट कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको समझने के लिए उनके एग्जाम्पल के ही देखते हैं। मान लो कभी आपको वेव फ्रंट एक पॉइंट सोर्स से निकलता हुआ दिखे, यहां पे एक पॉइंट है, यहां से वेव, ये सोर्स है वेव पॉइंट वेव का, ये क्या करेगा, हर डायरेक्शन में अपने प्रोपोगेशन करेगा, हर डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल सोचो, और हर डायरेक्शन में आपको एक स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। टी टाइम में यहां पे एक वेव फ्रंट, वही थोड़ी देर बाद में यहां पे एक पूरा स्पेरिकल वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट जो है एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स है। पॉइंट सोर्स के लिए स्पेरिकल वेव फ्रंट, तो पहला टाइप क्या हो गया, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पे डिपेंड करता है, पहला हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है लीनियर वेव फ्रंट, अगर मान लो सॉरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अगर एक लीनियर, मान लो एक ये एक लकीर जैसा है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। अब ये जब, अब अगर ये अपने वेव्स को प्रोपोगेट करेगा, है ना, आगे करेगा, तो कैसे, यहां से एक वेव निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, और एक एट एनी टाइम मैं अगर उसको देखूं तो सारे जो सेम फेस में दिखेंगे मुझे, वो एक इन द फॉर्म ऑफ, देखो इतना लंबा है सर्कुलर, बट उसका लेंथ भी है, ये सारा उसका वेव फ्रंट होगा, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा उस समय, तो वो हो गया सिलेंड्रिकल। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसा होगा, सोचो कि एक पॉइंट सोर्स है, वो इंफिनिटी पे है, बहुत दूर पे है, बहुत दूर से कोई वेव आएगी, स्पेरिकल, एक स्पेरिकल वेव बहुत दूर तक ट्रेवल कर ली, तो उसका जो उसकी जो आर्क है वो लगभग एक प्लेन की जैसा सीधी रहेगी, तो उस समय जो हमको वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वेव फ्रंट। कॉन्सेप्ट समझना है हमको, कॉन्सेप्ट वेव का, वेव फ्रंट से चालू होता है, कितने प्रकार के हो गए, तो स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। अब हाइगिन ने क्या बताया, हाइगिन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, उसने सेकेंडरी वेव फ्रंट के बारे में बात बताई। उसने बोला कि जब एक सोर्स, ये रहा एक सोर्स, इसने डिस्टरबेंस स्टार्ट की, डिस्टरबेंस से वेव बने, वेव आगे प्रोपोगेट होते गए इन फॉर्म ऑफ द वेव फ्रंट, छोटे छोटे वेव फ्रंट फिर बड़े होते गए, आगे बढ़ते गए, मगर उसने ये बताया कि ये एक्चुअली वेव फ्रंट प्रोपोगेट कैसे होंगे, अपने प्रिंसिपल के थ्रू आगे कैसे बढ़ेंगे। उसने ये बोलता है कि जब सोर्स ने डिस्टरबेंस पैदा किया तो वो वेव्स क्रिएट करेगा, वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, ये वेव फ्रंट हर पॉइंट पर सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट करेंगे। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे ही सोर्स ने, यहां पे सोर्स है, वेव फ्रंट क्रिएट किया, ये वेव फ्रंट क्या करेंगे, हर पार्टिकल अपने खुद के सेकेंडरी डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। हर पार्टिकल, देखो ये पार्टिकल सारे सेम फेस पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, सेम फेस पे, अब ये खुद डिस्टरबेंस पैदा करेंगे आसपास, और क्या क्रिएट करेंगे, देखो मान लो यहां पर एक पहुंच गए वेव फ्रंट, और यहां पर जितने भी पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल, इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, मैंने मगर यहां पे इतने ही सारे लिए हैं, ये क्या कर रहे हैं, खुद के वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, वेव फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये खुद के जो वेव फ्रंट है उसको वेवलेट्स बोलते हैं हम। अब ये जो खुद के वेव फ्रंट है ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर अगर आपको जानना है कि आगे वेव फ्रंट, अब ये सोर्स का आगे का वेव फ्रंट कहां होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप सोचो कि इन सारे वेव्स का जो रिजल्टेंट होगा, ये सॉरी इन सारे वेवलेट्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो सकता है, इन सब से मैं एक टेंजेंट खींच लेता हूं, देखो इसमें से एक टेंजेंट खींचा, इसमें से एक टेंजेंट खींचा, इसमें से एक टेंजेंट खींचा, ये सारे टेंजेंट्स मिलकर एक नया वेव फ्रंट बनेंगे, फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, और उससे फिर एक नया वेव फ्रंट बनेगा, और इसी हिसाब से, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाते हैं, इसी तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हैं। याद रखना फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन से अबाउट इट, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। हर एक पॉइंट वेव फ्रंट में, किसी एक वेव फ्रंट को ले लो, उसमें सारे पॉइंट्स सेकेंडरी वेव्स क्रिएट करने के लिए सक्षम होते हैं, और ये क्या करेंगे सेकेंडरी वेव, विच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, और वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो रिजल्टेंट नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाएंगे, और इसी हिसाब से वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ते जाएगा। यही चीज हमने यहां भी लिखी है, क्या बोलते हैं, एट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, every point on a wave front acts as a source of secondary disturbance which emits their own wavelets,
कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। तो सेकेंडरी वेवलेट क्या हुआ, हर पार्टिकल उस वेव फ्रंट का खुद का डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव, ये भी ऑल डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ वेव बनता है। कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, याद करना फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे वाला नहीं, फॉरवर्ड, कैसे प्रोपोगेट हो रहा है इसकी बात हो रही है। कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट in the forward direction gives new wave front and that's how it propagates। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ने क्या बताया, उसने पहली थ्योरी दी कि वेव्स बनते हैं, वेव्स में टर्म आता है वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट क्या होता है, सेम लोकस, सॉरी कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल इन द सेम फेस, और कितने प्रकार के होते हैं उसने ये भी बताया। उसके बाद उसने बोला कि ये प्रोपोगेट कैसे होते हैं, सोर्स से डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसने बोला वेव फ्रंट खुद अपने डिस्टरबेंस, उस वेव फ्रंट में जो पार्टिकल्स है खुद अपने डिस्टरबेंस पैदा करने में सक्षम होते हैं। वो क्या करेंगे, खुद से डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे, और उससे मिलकर उसका कॉमन टेंजेंट, उसका रिजल्टेंट एक नया वेव फ्रंट बनाएगा, और ये आगे प्रोपोगेट होते जाएंगे। सो दिस मच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा यूनिट है, चैप्टर है हमारा, विल कंप्लीट इट इन नॉट मच टाइम। सो दिस इज इट फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।